Hello everybody. Today we talk about how to make our children successful without comparing our children with anybody and how to motivate them. Myself Jyoti Jain, educator, motivational speaker, mid-brain activation expert and a parenting expert. Generally as our parents, we compare our children with other children to motivate them. If we want to motivate our children, it's my suggestion that we should motivate or compare our children with the person who has created history on his own way by his own passion, hard work and dedication. For example, I can take one example like Mr. Sundar Pichai. He needs no introduction. He is a CEO of Google company. He cracked the best institution IIT in India and then he went to other universities, Stanford and Wharton universities. So one thing I want to tell here, you can tell your child कि बेटा आप इस तरह से पढ़ोगे तो one day you will also achieve that height in your life. Never compare your child with his friends कि वो इतना अच्छा करता है, why can't you get the marks? In that way he will get complex with the friends and somewhere in his mind he'll start feeling jealous with him, and that definitely as a parent we don't want that type of mindset in his mind. As a parents, this is normally we say that we are spending so much on you, we are doing so much for you, we are working so hard for your education, we are doing more than what we can afford. These sentences casually we say, we don't even think what impact this will give in the child's tender mind. Parents, just think the sentences which I am using, which I have used just now, how many of you have used with your children in a casual way? Sometimes mothers say, I have left my career for you. See, मैंने तुम्हारे लिए सारा करियर छोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए घर पर बैठी हूँ, फिर भी तुम नहीं पढ़ते. Did your child told you to leave the career? No, never your child has said. This was your decision that you should leave a career, or the priority was your child that time. Why are you saying to him and making him complex or something, just telling him ki, see, I have done such a great job for you? As a parents, these things casually we say, and but in a long run when they become adult, this gives them a very complex and that too inferiority complex. So I just want to suggest the parents, if you want to compare your child or give the example of Mr. MS Dhoni, a cricketer, legendary cricketer of our country. आप उसका एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए पढ़ाई में अगर आपको नहीं अच्छा लगता, I have seen so many children, पढ़ाई के बजाय they love to sing, they love to play cricket, they love to play football, and as a parents we always say कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई ही करो. See, definitely in India we all know that education is must, and not only in India, everywhere education is must. But don't make the education a fear for the children कि आप नहीं पढ़ोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे. It's not like that. MS Dhoni is a big example. Mr. Shah Rukh Khan is a big example for us. There are so many examples. Nawazuddin Siddiqui is a big example for us. Education के साथ में there are so many things they can do it. But again, as for a children also I should say, whatever they should do the best. ये नहीं कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, दैट दे शुड नेवर बी. तो आप वो चीज इनकलकेट करिए बच्चों में कि वॉट एवर दे डू दे शुड डू द बेस्ट. एंड वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दैट नॉर्मली ऑल्सो यू क्लीन योर चाइल्ड. आप उसको गले लगा के बोलिए माई चाइल्ड इज द बेस्ट, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ. दिस विल इंक्रीज एंड एनहेंस द कॉन्फिडेंस. ओ माई पेरेंट्स लव मी सो मच. आपने तो नॉर्मल वे में बोल दिया, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दोस्त 98% लाया है, तुम 72 लेकर आए हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे लिए सेम स्कूल है, सेम ट्यूशन है, देन व्हाई कांट यू ब्रिंग? एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन कैलिबर, दिस वी ऑल नो. नो चाइल्ड कैन बी कंपेयर्ड विद अदर चाइल्ड. इवन आवर टू सिबलिंग्स कैन बी कंपेयर्ड. देन हाउ कैन वी कंपेयर आवर चिल्ड्रन विद अदर पेरेंट्स चाइल्ड? I think everybody will agree with me with this. Secondly, make your child a decision taker, not a decision maker. Sorry, decision maker, not a decision taker. बच्चे के अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि ही बिकम्स अ डिसीजन मेकर.
ये नहीं कि आपने बोला और उसने हाँ जी बोला। इनिशियल स्टेजेस पे इट विल मे बी यू विल फील गुड कि माई चाइल्ड इज वेरी ओबीडियंट। चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग दे शुड नॉट बी ओबीडियंट, बट डिसीजन अगर मेकिंग करने की हैबिट नहीं होगी, दे विल बिकम पपेट्स इन देयर लाइफ। छोटे छोटे डिसीजन होते हैं। अगर आपके बच्चे ने बोला कि मम्मा आई वांट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर, फाइन, आप उसको उसी में एनहेंस दीजिए, एनहेंसमेंट लाइए उसके अंदर। अपने बच्चे पर ट्रस्ट करिए उसके डिसीजन पर, और उसको आप बोलिए कि अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो प्ले फॉर 10 to 12 आवर्स, वो वाली मेहनत करो। नॉट कि आप गए 2 घंटे की कोचिंग करने चले गए, 2 घंटे बाद आप आ गए, दिस विल नॉट वर्क। यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। ओनली मी वाली सिचुएशन बच्चों के अंदर डालिए कि आई शुड बी ओनली मी, नॉट मी ऑल्सो। कि भीड़ में बच्चे को बोला आपने, उसको ये चीज डालिए उसके अंदर कि भीड़ से आपको अलग होना है। यू हैव टू बी अ फेस इन अ क्राउड। जब बच्चा अपने आप को फेस इन अ क्राउड लाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली क्राउड से ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर ये फीलिंग डाल दी है, यू हैव टू बी अ फेस इन अ क्राउड। तो आप उसको ये बात बोलिए कि नॉट मी ऑल्सो वाली सिचुएशन नहीं रहना है बेटा, आपको ओनली मी वाली सिचुएशन माना है। हो सकता है इनिशियल स्टेजेस पे उसको इतनी सक्सेस नहीं मिले अपनी चीजों पर, मे बी, तो उस चीज को एनालाइज करवाइए। ये नहीं तुम छोड़ दो, बेकार हो तुम इन सब चीजों में, ये सब मत बोलिए, बिकॉज डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं पता है बैक ऑफ हिज माइंड कि यस आई कैन डू इट। और अगर उसको लगता है वो नहीं कर पाएगा तो वो आपको बोल देगा एक दिन कि मुझसे नहीं हो रहा, बट उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करिए आप। जब आप उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करोगे तो डेफिनेटली बच्चा आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना सीखेगा। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स माइट बी रिलेटिंग देमसेल्व्स आल्सो कि हाँ, वो लोग भी कई बार ऐसा करते हैं कि बच्चे का डिसीजन को नहीं लेते। बच्चे को फुटबॉल में अगर इंटरेस्ट है या क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको उतना पैशन को फॉलो करने दीजिए। बोलो उसको कि आप सुबह उठो, 4 घंटे खेलने जाओ, उसके बाद स्कूल जाओ, फिर आओ वापस, उसको अगेन यू गो टू एंड प्ले, एंड पूरा जब तक कि आपको ये नहीं लगता कि ये भीड़ से अलग हो गया, तब तक आप उसकी पैशन को आप बोलो कि फॉलो करो। यू हैव सीन सो मेनी एग्जाम्पल्स अबाउट दिस कि 1 घंटे या 2 घंटे की चीज से पैशन नहीं फॉलो कर सकता, वो चीज अचीव नहीं कर सकता जो अचीव करना चाह रहा है। बिकॉज अगेन आई से कि अच्छे स्कूल्स में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना हर पेरेंट्स का, पढ़ाने का हर पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा द बेस्ट क्रैक करे, बट दिस इज नॉट द ओनली गोल। जब तक बच्चे के अंदर खुद पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, वो चीज हम अगर काम कर दिया तो बच्चा अपने आप करेगा चीजों को। करते क्या है हम लोग, हम बच्चे को डिसीजन बना के देते हैं, उसको डिसीजन टेकर बना देते हैं। मैंने तुम्हारा टाइम टेबल बना दिया है, तुमको यही फॉलो करना है, तुमको 4 घंटे रोज पढ़ना है। वो 4 घंटे बैठा भी रहेगा और पढ़ेगा भी नहीं। इट्स बेटर कि आप उसको बोलो कि आपको आज कितना फिनिश करना है, हाउ मच यू वांट टू फिनिश, आप उसको बोलोगे वो अपना कर लेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे उसके अंदर आने लगेगी। मे बी 1 दिन में 2 दिन में वो नहीं करेगा फॉलो, वो आपको बोलेगा हाँ मैं कर लूंगा, जब आप पूछोगे बोला नहीं हुआ, बट ओवर द पीरियड ऑफ लिटिल टाइम धीरे धीरे करके उसके अंदर फॉलो करना आ जाएगा। तो आई थिंक पर्सनली, फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबॉडी। मोटिवेट करना है तो आप उन लोगों से करिए जिन्होंने एक जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है, नॉट विद हिज फ्रेंड्स और द नेबर्स चाइल्ड और समबडी एल्स जो उसी के एज ग्रुप के हैं या उससे 2-4 साल बड़े हैं, नॉट विद दोज पीपल। कंपेयर करना है तो आप सक्सेसफुल जिन्होंने कोई हिस्ट्री क्रिएट करी है, वो भी अपने बलबूते पर, अपनी स्टडीज से, अपनी मेहनत से, उनसे आप कंपेयर करिए। देखो बेटा, इफ यू विल फॉलो दीज स्टेप्स तो आपका इस तरह से आपका होगा। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल, बच्चों को ये बोलो कि बेटा स्किल और टैलेंट एंड नॉलेज नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू। ट्राई टू डेवलप द नॉलेज एंड द स्किल एंड द टैलेंट। ये हम सब जानते हैं कि दुनिया में आपका पैसा कोई भी छीन सकता है, आपका कुछ भी छीन सकते हैं पब्लिक आपकी या दुनिया आपकी, बट नॉलेज, टैलेंट आपका कोई नहीं छीन सकता। तो बच्चे के अंदर आप यही चीज डालिए कि मनी सब बात की बात है, पहले अपने अंदर एक टैलेंट डेवलप। I think this is enough for this video. Thank you for watching the video. If you have shared my channel, thank you so much. If you are not yet subscribed, please do share, like and subscribe and give your valuable comments. And please also let me know on which topics you want me to make my more videos. Thank you. Amrit.